السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی بچے لائن پہ ہو نا؟ ہاں، تو آج میں نے آپ لوگوں سے کیا وعدہ کیا تھا کہ کیا پڑھاؤں گا؟ اگلی بحث نہیں، میں نے آج کہا تھا 2 ہفتے البلاغۃ الواضحہ پڑھایا نا، اب کہا تھا کہ فرائض پڑھاؤں گا۔ آج فرائض پڑھیں گے آپ لوگ انشاءاللہ۔ تو فرائض اس کے بارے میں کچھ تھوڑی موڑی بات بتاؤں گا۔ فرائض کا لغوی اور اصطلاحی معنی، اس کا موضوع اور اس کا ثمرہ۔ آپ سب لوگ میوٹ پر کر لیں تاکہ آواز جو ہے ٹکرائے نہیں، ہے نا؟ تو کاپی قلم لے کر کے بیٹھ گئے ہو نا؟ ہاں، تو مادے کا نام آپ لوگ لکھیے الفرائض۔ کون سا مادہ پڑھیں گے ہم لوگ؟ الفرائض۔ فرائض، اس کا ہم لغوی معنی آپ کو بتائیں گے، اس کا اصطلاحی معنی آپ کو بتائیں گے، اور آج اس کا موضوع بتائیں گے۔ پھر ہم اس کا ثمرہ بتائیں گے اور اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ آج اتنی بات ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیے، ہم اس میں کیا پڑھیں گے؟ ہم اس میں پڑھیں گے کہ شریعت اسلامیہ میں جو مال میں حقوق بنتے ہیں ایک دوسرے کے، جیسے بیٹے بیٹیوں کا حق اس کے ماں باپ میں بنتا ہے، ماں باپ کا حق اس کی اولاد میں بنتا ہے، یہ اور کس حالت میں، کس کنڈیشن میں کس کا کتنا حق بنتا ہے، ہم لوگ اس فن میں وہی چیز پڑھیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ تو فرائض، آپ اس کو لکھیے الفرائض لغتاً۔ کیا لکھیں گے؟ الفرائض لغتاً۔ سهم معین، سهم معین، الفرائض لغتاً جمع فریضہ معناها سهم معین۔ فرائض کا لغوی معنی ہے معین اور مقرر کردہ حصہ، مقرر کردہ حصہ۔ یہ فریضہ کی جمع ہے۔ یہ کیا ہے؟ سهم معین، لغوی معنی اس کا ہے معین حصہ، سہم، سین ہا میم، سهم معین۔ اس کا لغوی معنی ہے سهم معین، یعنی معین کردہ حصہ کہ کس کی جائیداد میں آپ کو کتنا متعین حصہ ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کا انتقال ہوا، اس کے تمام ورثہ پہنچے اور منمانی جتنا جو لوٹ پایا لوٹ لیا، جتنا جو لے پایا لے لیا۔ ایسا اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اسلام میں ہر ایک کا حصہ متعین ہے۔ جو جتنا قریبی ہے اسی حساب سے، قرب اور بعد کے حساب سے اللہ رب العزت نے حصہ متعین کیا ہے۔ اچھا، کس کا کتنا حصہ ہے، ہم اس میں دھیرے دھیرے اس چیز کو پڑھیں گے، ایک بیگ اس چیز کو ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو فرائض کا لغوی معنی آپ کو معلوم ہو گیا۔ فرائض کا لغوی معنی کیا ہے؟ سهم معین۔ لکھو فی الاصطلاح، یعنی اصطلاحی معنی، یا اصطلاحا یا فی الاصطلاح کوئی بھی کر کے لکھ سکتے ہو۔ فی الاصطلاح علم، علم یعرف بها، علم یعرف بها، یعرف بها کیفیت قسمت الترکہ علی مستحقیها، قسمت
किस्मत तरका, किस्मत माने बांटना, किस्मत माने बांटना, तकसीम। कैफियत किस्मत तरकती अला मुस्तहिक्की है। अला मुस्तहिक्की है या अलल मुस्तहिक्कीन लिख लो, मुस्तहिक्कीन पर, अलल मुस्तहिक्कीन। इल्मुन युरफु बिहा कैफियतु किस्मति तरकती अला मुस्तहिक्कीहा या अलल मुस्तहिक्कीन। ये बात समझ में आ गई? इस्तिलाही एतबार से फराइज किसे कहते हैं? ऐसा इल्म है, देखो मैं इसका तर्जुमा कर रहा हूं, ऐसा इल्म जिसके जरिए, है ना, युरफु बिहा कैफियत किस्मत तरका, जिसके जरिए तरका को बांटने की कैफियत मालूम की जाए मुस्तहिकीन पर, तरका को मुस्तहिकीन पर बांटने की कैफियत जानी जाए। यानी इस इल्म के जरिए तरका, तरका समझते हो ना, तरका, हाँ, मय्यत जो माल छोड़ के जाता है, तरका तो माने छोड़ना, तरका माने छोड़ा हुआ माल, मय्यत की तरफ से छोड़ा हुआ माल। जैसे मान लीजिए आपके वालिद साहब है ना, आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो वो बैंक बैलेंस, घर जायदाद, दुकान मकान जो कुछ भी छोड़ के गए हैं वो सब तरका है, वो सब वारसा का तरका है। तो इस्तिलाही एतबार से फराइज किसे कहते हैं? किस चीज की जानकारी का नाम है? ऐसा इल्म जिसके जरिए तरका को तकसीम करने की कैफियत जानी जाए मुस्तहिकीन पर, कि मुस्तहिकीन पर तरका कैसे बटेगा, किस हिसाब से बटेगा, किस रेशियो के हिसाब से बनेगा, या कितना परसेंट हिस्सा किसका उसकी जायदाद में बनता है। यही सारी बातें आप लोग इस इल्म में सीखेंगे। तो फराइज का लुग़वी और इस्तिलाही माना आफाक लिख लिए, समझ गए? हाँ, फराइज। अब हम लोग फराइज का लुग़वी और इस्तिलाही माना जान गए हैं। इख्तिसार में लुग़वी एतबार से फराइज बोलते हैं मुअय्यन करदा हिस्सा, और इस्तिलाही एतबार से ऐसा इल्म या ऐसी जानकारी जिसके जरिए से तरका को मुस्तहिकीन पर बांटने की कैफियत जानी जाए। कैफियत में क्या माने? कैसे बांटा जाए। कैफियत के माने क्या? कैसे बांटा जाए। हाँ, तो ये दो चीजों को, इन दो चीजों को हम लोगों ने सीख लिया। फराइज का लुग़वी माना, फराइज का इस्तिलाही माना आप लोगों ने नोट कर लिया। फराइज का मौजू क्या है? फराइज का मौजू क्या है? फराइज का मौजू है तरका और उसके मुस्तहिकीन, तरका और उसके मुस्तहिकीन। तो लिखो अतरकतु व मुस्तहिक्कुहा अल-मौजू। दूसरे नंबर पे डालो भाई। अभी तो पहली पॉइंट है फराइज का लुग़वी और इस्तिलाही माना, फराइज का लुग़वी और इस्तिलाही माना, ये पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट है अल-मौजू, फराइज का मौजू क्या है। भाई हर चीज का कोई ना कोई मौजू होता है ना, तो ऐसे फराइज का भी कोई मौजू होगा। तो लिखो अल-मौजू, अल-मौजू यानी फराइज का मौजू। अतरकतु व मुस्तहिक्कुहा, फराइज का मौजू है तरका और उसके मुस्तहिकीन, उसके वारसा। अतरकतु व मुस्तहिक्कुहा, तरका तो मैंने बता दिया, मुस्तहिकीन के माने वारसा, जो लोग उसके वारिस हैं। अतरकतु व मुस्तहिक्कुहा, तरका और उसके मुस्तहिकीन। तो दो चीज सीख लिए, फराइज का लुग़वी इस्तिलाही माना नंबर 1, नंबर 2 फराइज का मौजू। नंबर 3 लिखो अस्समरा, यानी जब सीख लेंगे तो इसका नतीजा क्या होगा, क्या इसका समरा होगा, क्या समरा है इसका। अस्समरा, नंबर 3 में लिखो अस्समरा, अस्समरातु। नोट कर लिए अस्समरातु। देखो ईसाल तरकत इला मुस्तहिक्कीहा, ईसाल तरका
इला मुस्तहिक़ीहा। तारका को मुस्तहिक़ीन तक पहुंचाना। भाई आप सीख लेंगे, भाई नहीं सीखेंगे और सीख लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? जब नहीं सीखेंगे तो तारका उसके मुस्तहिक़ीन तक सही अंदाज से, सही तौर से नहीं पहुंच सकता है। जिसको जो मिलना चाहिए उससे या तो कम मिलेगा या तो ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जब आपको इसकी जानकारी हो जाएगी कि इस्लाम में या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसकी जायदाद में किसका कितना हक रखा है, किस हालत में कितना हक रखा है, जब आप उस चीज़ को जान लेंगे और कायदे से आपको उसकी जानकारी हो जाएगी, तब ना सही उसका हक मिल जाएगा। और अगर आप नहीं जानते हैं तो उल्टा सीधा, जिसको मान लीजिए 1/4 रुबु मिलना है, उसको हो सकता है निस्फ दे दें, जिसको निस्फ मिलना है उसे हो सकता है कुल दे दें या कुल ले ले वो। भाई जब कोई हिदायत नहीं होगी, कोई इल्म उसके बारे में नहीं होगा तो उल्टा सीधा होगा। और जब उसका इल्म हो जाएगा तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि जो माल जितना जिसको मिलना है, जिस हिसाब से जिसको मिलना है, मुस्तहिक़ीन को, वारसा को जिस हिसाब से मिलना है, उनको सही उन तक माल पहुंच जाएगा। इसी वजह से फराइज़ सीखने का समरा क्या होगा, उसका नतीजा क्या है? ईसालुत तरकती इला मुस्तहिक़ीहा, तरका को उनके मुस्तहिक़ीन तक पहुंचाना। नोट कर लिया? तो कितनी बातें हो गई, कितनी चीजें सीख लिया हम लोगों ने? 3 चीज हम लोगों ने सीख लिया। फराइज़, लुग़वी और इस्तिलाही माना, इसका मौजू और इसका समरा। इसमें हम लोग यही सीखेंगे कि इस्लामी एतबार से भाई हर मुल्क का अलग अलग कानून होता है, हर धर्म का अलग अलग कानून होता है, लेकिन आप तमाम धर्मों को देखें और तमाम मुल्कों को देखें तो माल की तक़सीम में वो एतदाल नहीं है, कमी बेशी है। लेकिन इस्लाम में जिसका जितना हक चाहिए, जिसको जितना हक चाहिए, उसको बड़े हिसाब से रखा गया है। ना किसी को कम मिले और ना किसी को ज़्यादा, बल्कि जिसको जितना उसका हक बनता है उसी हिसाब से उसको मिले। देखो बहुत सारे धर्मों में ऐसे है कि बेटियों को हिस्सा ही नहीं देते हैं, ऐसा है कि नहीं? हाँ, आज भी ऐसे है। लेकिन इस्लाम मजहब इस्लाम में ऐसा नहीं है, बल्कि मुसलमानों में ऐसा है। मुसलमानों ने अपनी बहन बेटियों को हिस्सा नहीं दिया है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इस्लाम में ऐसा है। हम लोग इस फन में यही सीखेंगे कि क्या ये जो जायदाद के बंटवारे का तरीका है मुसलमानों के दरमियान राइज है, ये सही है या गलत है, और अगर गलत है तो फिर सही क्या है, किसको कितना मिलना चाहिए, किस हिसाब से मिलना चाहिए। हम लोग इस फन में वही सीखेंगे। ये बहुत अहम फन है, बहुत अहम मौजू है, ठीक है। इसको इंशाअल्लाह हम धीरे धीरे करके, अगर एक ही मतलब में बहुत सारी बातें बता देंगे तो हो सकता है ज़हन से बात निकल जाए। तो आज हम लोग सिर्फ इतना सीखेंगे, फराइज़ का लुग़वी इस्तिलाही माना, फराइज़ का मौजू और फराइज़ का समरा, ठीक है। हाँ, इतना सीख लेंगे, फिर धीरे धीरे करके बाकी बातें सीखेंगे तो इंशाल्लाह सब एक एक करके समझ में आके चली जाएगी। इसमें थोड़ा कम पढ़ा मिलेगा इस वजह से कि आपको लिखाना भी रहेगा ना, मतलब बोल करके, तो किसी को कभी कोई जुमला समझ में आएगा, किसी को कभी नहीं समझ में आएगा। लेकिन यह है कि धीरे धीरे करके सारी बातें हो जाएंगी इंशाल्लाह, कुछ छूटेगा नहीं इंशाल्लाह, ठीक है।